Hello everyone, welcome to English Honors classes. My name is Ashutosh Dutt Mishra, and in this particular lecture we will continue our discussion on Kalidas. So let me just share the screen with you all. Just give me 1 second. सो हम लोग जो है वो पिछले क्लास में कालिदास पे हमने बहुत बेसिक बात की थी। संस्कृत प्ले राइट्स को भी समझने की कोशिश की थी, जैसे भास के बारे में हमने थोड़ी बातें की थी। फिर शूद्रका पे भी बात हुई थी, एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कालिदास. So in this particular lecture, I will try to cover very basic details about Kalidas, the man, the myth and the creative genius जो हमने लिखा है. मतलब एक व्यक्ति, बहुत सारे मिथक चलते रहते हैं कालिदास को लेकर के, और क्रिएटिव जीनियस भी हैं. बहुत सारी चीजें जो इन्होंने लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम की आप बात करें. So whatever he has written, he must be considered as a creative genius. So we will try to analyze Kalidas as a man, the myths related to Kalidas, and also Kalidas as a creative genius. So these are the information that we have discussed in the previous class. सबसे पहला जो point आता है वो ये आता है कि कालिदास के टाइम पीरियड को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो. कि जैसे चूंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं कालिदास के बारे में, सो ज्यादातर जो हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है वो उनके वर्क से मिलती है. ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि वेरी ऑफन वी जज अ राइटर फ्रॉम हिज टाइम पीरियड, और वी बेसिकली एनालाइज अ राइटर according to his time period, in which time period he was living, from what kind of society he belongs to. But in the case of Kalidas, the scene is different. It is almost opposite. We try to understand about Kalidas from the references within his own work. So Kalidas texts provide insight into his world and and the historical context in which he lived. Rather, so this is just the opposite scene. ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका, और ये तरीका हम बाकी राइटर्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो चूंकि ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पार्ट है, बहुत एंशिएंट चीजें हैं, तो हमें इस अप्रोच के साथ जाना होता है कि हम कालिदास के का जो उनके क्रिएशंस में, उनके लिटरेरी क्रिएशंस में जो वर्ल्ड वो क्रिएट करते हैं, उस वर्ल्ड से हम उनके इंटरनल वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. सो इन एनालाइजिंग हिज वर्क, the traditional approach of starting from the writer's external world is reversed due to the lack of external information about Kalidas. कालिदास के बारे में external information बहुत available ही नहीं है, इसलिए हमें उनके work से ही analyze करना होगा. That is the primary thing. So Kalidas was conscious of contemporary literary trends and style, allowing him to focus on themes related to courtly life and divinity. While his subject matter may seem lofty and he served as a court poet, Kalidas' works also connect with the emotions of ordinary people, indicating a broader appeal within the context of classical literature. So if we just talk about, just give me. So the point that we need to understand is simply is we understand Kalidas from his works. We understand the society of Kalidas, the historical context of Kalidas in which he lived from his own works. Second thing that we need to understand is Kalidas served as a court poet, but he is also aware with the emotions of common people. तो ये दो बातें, ये चीजें हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर ली थी. अब थोड़ा आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. नाउ कालिदास बैकग्राउंड, आखिर कौन से टाइम पीरियड में थे. तो देखिए, हिस्टोरियंस में थोड़े बहुत एक कालिदास का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप नहीं बता सकते हो कि दिस पर्टिकुलर ईयर से लेकर के दिस पर्टिकुलर ईयर तक वो एग्जिस्ट कर रहे थे. So the exact time frame of Kalidas, because he was an ancient poet, remains uncertain due to the lack of historical records and varying scholarly opinions. तो बहुत सारे जो चीजें हैं,
ये अनसर्टेनिटी इसलिए इसमें आती है. सो सम स्कॉलर्स बिलीव कालिदास लिव ड्यूरिंग द 2nd century BC, possibly as a court poet of Angmitra Sung during the Sung Empire, 184 BC to 78 BC. तो कुछ एक स्कॉलर्स या कुछ एक हिस्टोरियंस अगर आप कहे तो वो बिलीव करते हैं कि कालिदास जो है वो अंगमित्र सुंग के यहाँ, मतलब उनके कोर्ट पोएट थे, और इसलिए वो 2nd century के आसपास जो है वो रहे होंगे, 184 BC से लेकर के 78 BC तक. तो 2nd century बिफोर क्राइस्ट, मतलब इट्स तो 2nd century BC में जो है वो रहे होंगे. एक और पर्सपेक्टिव ये कहता है कि कालिदास लिव्ड इन द 1st century BC बिफोर क्राइस्ट, विच इज ड्यूरिंग द रेग्न ऑफ विक्रमादित्य. एक तीसरा ओपिनियन भी है जो ये कहता है कि कालिदास लिव्ड बिटवीन द 4th and 5th century AD ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड. मतलब अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो 3 ओपिनियन है, जो पहला ओपिनियन है विच इज सेइंग दैट ही लिव्ड ड्यूरिंग the time period of Agnimitra Sung. Second opinion is that he lived during the time period of Vikramaditya of Ujjain, and the third opinion that he lived during the time period of Chandragupta II. तीनों ओपिनियन में जो टाइम फ्रेम है वो लगभग 700 साल का है, और एक व्यक्ति 700 साल तो जिंदा रहा नहीं होगा, तो इन तीनों में से कोई एक ही सही होगा. बट द पॉइंट इज कि he lived in the city of उज्जैन. उज्जैन सिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज when we talk about Sudraka, when we talk about Bhas also, they all lived in Ujjain. तो उज्जैन एक ऐसी जगह है जो कल्चरली, लिटरेचर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और रिलीजन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. सो ऑलवेज रिमेंबर उज्जैन. So the lack of historical information about Kalidas' life allows a scholar to focus solely on his text, freeing them from historical contrast. तो इसका फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये अपने आप में एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि अगर आपको कालिदास के टाइम पीरियड के बारे में पता नहीं है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वेदर इट इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, क्योंकि आपको उनके बारे में उनके वर्क से ही पता लगाना पड़ेगा. अच्छी बात यह है कि वो जो हिस्टोरिकल कांस्टेंट होते हैं, जो चीजें आप हिस्ट्री के हिसाब से जो लोग को जज करते हैं, उससे वो बाहर निकल जा रहे हैं. So Kalidas' work reveal his deep appreciation for the natural beauty of the Malwa region in central India, especially Ujjain. That is the point I was talking about. कि Ujjain city is an important thing. We get to know about the various description in the works of Kalidas about the central region of India. तो जो MP का जो इलाका है, जिसको आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो जो एरिया है वो लगभग आपको ऐसा है कि उस एरिया के बारे में, जो मालवा रीजन है उसके बारे में कालिदास अपने वर्क्स में काफी कुछ लिखते हैं. उज्जैन पिकेरस लैंडस्केप एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस्ड कालिदास पोएटिक इमेजरी एंड एस्थेटिक अपील. उज्जैन वाज नॉट ओनली अ कल्चरल एंड कमर्शियल सेंटर बट आल्सो हब फॉर साइंटिफिक लर्निंग. ये वाला पॉइंट भी आप समझिएगा, वो सिर्फ कल्चर और कमर्शियल सेंटर नहीं था, साइंटिफिक लर्निंग का भी सेंटर था. और जो इंडियन कैलेंडर्स जब निकलते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी की रिलेटेड चीजें हैं, जिससे आप मौसम और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हमें साइंस के जरिए मिलती है, ये सारी चीजें उस समय उज्जैन से ही होती थी. सेंट्रल इंडिया ही उसका लोकेशन हुआ करता था. सो उज्जैन वाज अ सिग्निफिकेंट सिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ कालिदास. And we can see the description, the poetic description of Ujjain or the central India in the works of Kalidas. So that is an important point we need to understand. Now Kalidas' works reflect optimism and pride, portraying an era of progress, wealth and prosperity. तो उनके वर्क्स में आपको दिखेगा कि वहां पे खुशहाली है और काफी अच्छे से उसको वो elaborate करते हैं. Despite being a court poet, Kalidas' writing exhibits sensitivity to the emotions and struggles of ordinary people, making him unique in expressing the nuances of human emotions. ये बात भी हमने पहले करी कि कालिदास जो है वो ऐसा नहीं है कि रॉयल फैमिली से अगर उनके कनेक्शंस थे और ही वाज अ कोर्ट पोएट तो ही वाज unaware about the emotions of the common people. That is not the case. Kalidas is completely aware about the emotions of the common people, or he understands the nuances of human emotions, and he was quite successful in expressing those emotions in his works. तो वो अपने वर्क्स में उन इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं. ये चीजें आप ध्यान रखिएगा. पॉइंट ये है कालिदास के बैकग्राउंड में जो चीजें समझने वाली हैं. पहला ये कि कालिदास को 3 अलग अलग राजा के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं. पहला अंगमित्र सुंग के टाइम पीरियड में, जो कि 2nd century BC की बात करता है.
फिर जो है वो हम विक्रमादित्य के बारे में पॉइंट आउट करते हैं जो 1st सेंचुरी बीसी की बात करते हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं जो 4th और 5th सेंचुरी बीसी की सॉरी एडी की बात करता है। तो ये 700 साल का टाइम फ्रेम है, एग्जैक्ट कौन है कहना मुश्किल है। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, और द क्वेश्चन मार्क कंफ्यूजन से ज्यादा अच्छा होगा कि देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जैक्ट टाइम फ्रेम ऑफ कालिदास, but we need to understand that he is quite associated with the city of Ujjain or the central India. His works describe those things in very beautiful and poetic manner. And Ujjain is important. Ujjain is not only important for cultural and religious importance or commercial importance, it is also important for scientific learning. So Ujjain becomes important in the during the time frame of Kalidas. And now the last thing is कि Kalidas does not only understand the emotions or understand the gestures or understands the behavior of royal class, but he also understands the emotions or expressions of the common man or the common class. तो ये सारी बातें कालिदास के बैकग्राउंड में अगर आप पता रखेंगे तो आपको that is quite good. अब हम उनके वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी लाइफ और वर्क कौन कौन से उन्होंने लिखे और क्या बेसिकली लिखा क्या, आफ्टर ऑल व्हाट ही हैज रिटन। हम उनको एक ड्रामेटिस्ट के तौर पे जानते हैं, एक एपिक राइटर के तौर पे जानते हैं और एक पोएट के तौर पे भी जानते हैं। सो ही वाज अ वर्सेटाइल राइटर नोन फॉर हिज वर्क एज अ ड्रामेटिस्ट, epic writer, and as a poet also. So his plays were often based on the adventures of king, while legends and folk tales inspired his poetic works. ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मली जो उन्होंने प्ले लिखा वो राजा का जो एडवेंचर्स हुआ उस पे लिखा, और while legends and folk tales जो उन्होंने लिखे, जो पोएट्री जो उन्होंने लिखी वो लेजेंड और जो फोक टेल्स होते हैं, जो फोक्स मतलब लोकल लेवल पे जो कहानियां बहुत फेमस होती हैं उनको फोक टेल्स कहते हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर के अपनी पोइट्रीज कुछ एक लिखी। अगर आप देखेंगे कि कालिदास कैरेक्टर इन हिज राइटिंग वेर मल्टी डायमेंशनल एंड ही यूज इमेजिनेटिव एलिमेंट टू एक्सपेंड देयर डेप्थ। जो भी कैरेक्टर कालिदास पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्क्स में, जैसे हम अभिज्ञान शकुंतलम भी पढ़ेंगे तो जो शकुंतला का कैरेक्टर है वो महाभारत से इंस्पायर्ड है, और तो बट उसको डेप्थ देने के लिए इमेजिनेशन का बहुत अच्छा यूज करते हैं। और जैसे हमने नाट्य शास्त्र की बात की थी, आई होप यू रिमेम्बर, नाट्य शास्त्र इज अ वर्क बाय भरत मुनि, तो उसमें जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कालिदास उसको फॉलो भी करते हैं। और ब्यूटी एंड एस्थेटिक कॉन्सेप्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन गाइडिंग द एक्शंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स। बहुत डेप्थ, जैसे अब अभी इफ आई टॉक अबाउट अभिज्ञान शकुंतलम, तो जो शकुंतला की ब्यूटी है when first time the king saw her, so it has been described in a very magnificent manner। उसको हम जब textual analysis करेंगे तो पढ़ेंगे भी। So everything whatever Kalidas wrote, it was in a magnificent manner. The character is not just single dimensional, it has depth, it has layer, it is multi dimensional। और बहुत गहराई के साथ जो कैरेक्टर है वो क्रिएट करते हैं। ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि आप सीधे सीधे डिवाइड कर दो कि ये अच्छा और ये बुरा, या इस तरीके का टिपिकल कैरेक्टर्स नहीं है। द कैरेक्टर्स हैव डेप्थ। सो कालिदास इज कंसीडर्ड अ सेकुलर वॉइस in a predominantly conservative culture due to his rational approach to life, integrating pleasure with novel ideas। एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि was कालिदास a liberal or humanist? तो आपको ये समझना चाहिए कि कालिदास जो है वो लिबरल और ह्यूमनिस्ट बिल्कुल है। वो ऐसा ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के नहीं थे अपने टाइम पीरियड पे भी होते हुए। जिस टाइम पीरियड में थे उस टाइम पीरियड से वो बहुत आगे थे। कंजर्वेटिव जो सोच है वो वैसे नहीं थे। सो ही वाज क्वाइट सेकुलर एंड और ये बात आपको इस समय ध्यान रखना है कि द सोसाइटी इन विच ही वाज प्रिवेलिंग और इन विच ही वाज लिविंग वाज almost predominantly conservative in nature, but Kalidas was quite matlab he should be considered as a secular voice in that time as well। तो फिर his secularism stemmed from viewing events in the time rather than relying on outdated ideas from the past। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव आप उनको कह सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय से आगे का होता हो। So Kalidas humanism makes his work relatable as he stirs basic emotions and feelings in readers। तो देखिए कोई भी वर्क अच्छा तभी माना जाता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है
कि अगर वो टाइम और प्लेस के बाउंडेशन, जैसे एपिक में मैंने या महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एपिक समझेंगे टाइम और प्लेस का बाउंडेशन खत्म हो जाए, मतलब वो लिखा गया बहुत पहले और वो आज भी रेलेवेंट बना रहा है, लिखा गया इंडिया में, अमेरिका के भी लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या वहां भी उसको पढ़ा जाए समझा जाए, तो टाइम और प्लेस का बाउंडेशन खत्म हो गया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो भी वर्क लिटरेरी क्रिएशन जो लिखा जा रहा है वो रिलेटेबल हो, रेलेवेंसी उसकी बनी रहे। So when we talk about the works of Kalidas, they are quite relatable even in modern times, just because they are far ahead from his own time period, and because of the concept of humanism or liberalism. तो वो जो सेकुलर अप्रोच है, वो जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है उनके वर्क्स में, सो कालिदास ह्यूमनिज्म मेक्स हिम मोर रिलेटेबल और रेलेवेंट इवन इन द मॉडर्न टाइम्स, वो ह्यूमनिस्ट अप्रोच की वजह से ही। He gave a voice to the characters who may have been insignificant in everyday life but gained significant through his writings. तो वो characters, Kalidas surviving work include long lyrical poem, 3 plays and an incomplete epic. तो अगर हम उनके वर्क्स की बात करें तो 3 लॉन्ग लिरिकल पोयम हैं जो उन्होंने लिखी जो सर्वाइविंग है। सर्वाइविंग इसलिए कि जैसे देखिए अगर आप भास की भी बात करें या कालिदास की, इनके वर्क्स जो है वो बहुत समय तक अनजान रहे और फिर 20th सेंचुरी के आसपास इनके वर्क्स को ढूंढा गया वी गेट टू नो अबाउट दोज वर्क्स। तो जो सर्वाइविंग वर्क्स हैं बहुत सारे, हो सकता है कि इससे ज्यादा कालिदास ने लिखा हो और बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, so that is why we are talking about only surviving works which include 3 long lyrical poem, 3 plays हैं और एक incomplete epic है, कि epic भी वो लिख रहे थे जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है वो है मेघदूतम इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट, फिर अभिज्ञान शकुंतलम जो आपके सिलेबस में है, रघुवंशम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, और ईच शोकेसिंग हिज इवॉल्विंग लिटरेरी आर्टिस्ट्री एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज ड्यूटी एंड डिजायर। और सब में आपको वो जो ड्यूटी और डिजायर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थीम है, ये आपको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो अपने ड्यूटी से बंधा हुआ है, ड्यूटी और डिजायर के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि आपका कर्तव्य कुछ और है और आपका मन कुछ और कर रहा है, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इनके वर्क में बहुत दिखता है कि ड्यूटी और डिजायर का जो कॉन्फ्लिक्ट आपको समझना है, ड्यूटी इज कर्तव्य, डिजायर इज आपकी जो इच्छाएं, कि मतलब जो आपको करना चाहिए और जो आपका मन कर रहा है कि आप करें, उसके बीच का जो अंतर है, उसके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इनके वर्क्स में आपको देखने को मिलती है, विच मेक्स हिज वर्क मोर रियलिस्टिक एंड मोर रेलेवेंट इवन इन मॉडर्न टाइम्स। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो शकुंतला की कहानी है, कहानी पे हालांकि हमने पहले भी बात की, यहाँ पे द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द महाभारत, के महाभारत में जो कहानी थी, शकुंतला की जो कहानी थी, और इसमें जो अभिज्ञान शकुंतलम की भी जो बेसिक स्टोरी आउटलाइन है, हालांकि मैंने पहले ही लेक्चर में वो स्टोरी आउटलाइन आपको बहुत शॉर्ट में सुनाया था, उस स्टोरी आउटलाइन को एक बार फिर से हम थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में अभी समझने की कोशिश करें। सो द नैरेटिव प्राइमरली फोकस ऑन किंग दुष्यंत एंड हिज लीनिएज। तो जो स्टोरी आउटलाइन है, इट इज प्राइमरली और बेसिकली फोकस्ड ऑन द किंग दुष्यंत, वो उस राजा पे फोकस्ड है, विद शकुंतला सर्विंग एज अ मीन टू एस्टैब्लिश हिज प्रोस्पेक्टिव हेयर। तो जो वो अपना उत्तराधिकारी जो एयर वो स्थापित करना चाहते हैं, मतलब चूंकि एक स्टोरी चल रही होती है कि द किंग ऑफ शकुंतला विल बी द किंग आफ्टर किंग दुष्यंत, तो जो सॉरी द सन ऑफ शकुंतला, द किंग ऑफ शकुंतला नहीं, द सन ऑफ शकुंतला will be the king of will be the king after king दुष्यंत। तो किंग दुष्यंत के बाद जो राजा बनेगा वो शकुंतला का ही बेटा बनेगा। तो दुष्यंत को के पास एक पर्पस है कि उनको अपना एक जो लीगल एयर आप कह लो या जो उत्तराधिकारी है वो उनको चाहिए, और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए शकुंतला एक्ट्स एज अ मीन टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो दिस इज द थिंग इन द एपिक दुष्यंत इज, सो शकुंतला इज मियर अ मीन, वो बस एक साधन है। द मेजर कैरेक्टर इज किंग दुष्यंत, दैट इज द पॉइंट, that is the first point that I am explaining to you. The second point is, in the epic Dusyant is depicted as the triumph and powerful king.
ऑलमोस्ट इक्वल टू इंद्र द किंग ऑफ द गॉड्स। तो अगर आप एपिक यानी कि महाभारत की बात की जाए तो महाभारत में किंग दुष्यंत को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उनका पोर्ट्रेयल लार्जर देन लाइफ है। मतलब ही इज नॉट अ वीक किंग, ही इज a very strong, a very triumph, the one who can win almost any other king। एक ऐसा राजा जो किसी भी दूसरे राजा को हरा सकता है और बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है जो दुष्यंत है। एंड इनफैक्ट ही इज कंपेयर टू द किंग ऑफ गॉड्स इंद्र। तो राजा इंद्र से उनकी तुलना की गई है कि दुष्यंत उतने ही पावरफुल है जितने कि देवताओं के राजा इंद्र। तो जो प्राइमरी कैरेक्टर है वो किंग दुष्यंत का कैरेक्टर है। Dushyant encounters Shakuntala in a hermitage that he stumbles upon while pursuing a deer in the forest। तो एक बार ये दुष्यंत जो है वो जा रहे थे एक हिरण के पीछे और फिर वहां एक हर्मिटेज, एक कुटिया में उनकी मुलाकात जो है वो शकुंतला से होती है। शकुंतला इज द एडॉप्टेड डॉटर ऑफ द हर्मिटेज एसेटिक कण्व कश्यप। तो उस हर्मिटेज, उस कुटिया की जो एक एसेटिक, एक संत होते हैं, एक सेंट होते हैं कण्व, उनकी एडॉप्टेड डॉटर है, अपनी डॉटर नहीं है। आई होप यू रिमेंबर, आई हैव told you in the story that Shakuntala is actually the daughter of Vishwamitra and Menka। captivates दुष्यंत with her beauty। और मैंने अभी आपको बताया कि जो शकुंतला की ब्यूटी है बहुत इलेबोरेटेड मैनर में अभिज्ञान शकुंतला में डिस्क्राइब किया गया है। तो वो उसकी ब्यूटी की तरफ कंप्लीटली कैप्टिवेट हो जाते हैं, कंप्लीटली फैसिनेटेड और अट्रैक्टेड हो जाते हैं पूरी तरीके से द किंग दुष्यंत। Now when he visits that particular hermitage, her parents was not there, means Rishi Kanva was not there। So Shakuntala explains her birth story, revealing that she is the daughter of the Apsara Menka and ascetic Vishwamitra। वो अपनी कहानी बताती हैं इनको और वो उनके लिए जो है वो ग्रूम ढूंढने गए होते हैं जो ऋषि, चूंकि वो अब बड़ी हो रही होती हैं। और इधर शकुंतला जो है वो अपनी स्टोरी व्हेन ही मीट किंग दुष्यंत, सो शी नरेट्स हर स्टोरी अबाउट द स्टोरी ऑफ हर बर्थ, दैट हाउ शी इज द डॉटर ऑफ किंग विश्वामित्र एंड मेनका। तो ये जो है वो समझाती हैं किंग यानी किंग को बताती हैं। नाउ कम्स जस्ट वन। So she was abandoned by her mother Menka, who returned to the realm of the gods। तो उनकी माँ उनको छोड़ के चली जाती हैं और मेनका जो है वो इंद्र का जो दरबार चल रहा होता है वो वहां से बिलोंग करती हैं। So she returned to the realm of gods, ईश्वर के यहाँ। Shakuntala's upbringing was overseen by the saint Kanva and she grew up in the hermitage। शकुंतला की जो अपब्रिंगिंग है वही कण्व ऋषि के द्वारा ही होती है और वही कण्व ऋषि जो है वो उन्हीं के वो हर्मिटेज में वो पलती बढ़ती हैं, वो बड़ी होती हैं। दुष्यंत डीपली इम्प्रेस्ड बाय शकुंतला प्रपोजेस अ गंधर्व मैरिज। आपको पता है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में या जो इंडियन जो कॉन्सेप्ट चलते हैं रिलीजन में, उसमें एक चलता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मैरिज which is a kind of secret marriage, जिसमें वो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं बट वो उस तरीके से नहीं होता है। सो प्रपोजेस अ गंधर्व मैरिज की हम लोग यही शादी कर लेते हैं, विच सी एक्सेप्ट अंडर द कंडीशन दैट देयर सन वुड बिकम द नेक्स्ट किंग। और वहीं पे वो कंडीशन रखती हैं कि ठीक है वो विवाह कर लेंगी, वो गंधर्व मैरिज कर लेंगी, बट देयर इज वन कंडीशन दैट द किंग दैट हर सन विल बिकम द किंग ऑफ will become the next king or will become the king after king Dushyant। तो उन्हीं का बेटा राजा बनेगा, यही कहानी। that is why initially I was saying that it is the purpose of king Dushyant। हालांकि अभी आपको लगेगा कि ये पर्पस तो शकुंतला का है, बट नो, इट इज द पर्पस ऑफ किंग दुष्यंत। और वो बैकग्राउंड की एक स्टोरी है कि उन्हीं का बेटा को बनना था। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट बैकग्राउंड स्टोरी, बट स्टिल आफ्टर, तो वो कंडीशन वो मान लेते हैं। आफ्टर देयर सीक्रेट मैरिज दुष्यंत रिटर्न टू हिज कोर्ट एंड शकुंतला गिव्स बर्थ टू ए सन एट द हर्मिटेज। वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर ये वापस चले आते हैं महल और फिर शकुंतला एक बच्चे को जन्म देती हैं। वो लगभग 6 साल का होता है, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा होता है। तो फिर ऋषि कर्म को लगता है कि अब इसे वापस वहां जाना चाहिए दरबार।
When Shakuntala and her son are brought to the king palace, Dushyant initially rejects her. शुरू में वो मानने से ही इनकार कर देते हैं। इसमें एक चीज वो जो छूट रहा है, डेट इज द वो जो कर्स था, कर्स ऑफ सेंट दुर्वासा, that is because of that. But still we need to understand, when Shakuntala and her son are brought to the king palace, Dushyant initially rejects her, but eventually he acknowledges them as his own after a celestial voice intervenes. इसलिए चूंकि महाभारत में वो सीक्वेंस नहीं है, महाभारत में सीक्वेंस ये है कि वो मानने से इनकार कर देते हैं और फिर आकाशवाणी होती है, a celestial voice intervenes, realizing the importance of his son and the truth of Shakuntala word. वो celestial interference जिसको आप divine intervention का जो concept कहते हो, which you can notice several times in the epic of Mahabharata. और वो इनवॉइस ये है कि you know the importance of the son of Shakuntala, because he will be going to rule the entire world, the entire Arya, the entire Bharat. So उसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है और सेलेस्टियल मतलब आकाशवाणी होती है, ऊपर से आवाज आती है और फिर वो जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट इज द ओरिजिनल स्टोरी. अब आपको एक चीज समझना है. मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि महाभारत की जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो क्या थी. अब थोड़ा सा फॉर्म का कॉन्सेप्ट अगर हम समझ ले, ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, क्योंकि महाभारत इज एन एपिक, वेयर एज अभिज्ञान शकुंतलम इज ए ड्रामा. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एपिक एंड ए ड्रामा, और क्या किया जाता है, आखिर एपिक क्या है, ड्रामा क्या है. एपिक पोइटिकल इन नेचर होता है, लेकिन ड्रामा में भी पोइटिक होते हैं. और एपिक इज फॉर द पर्पस ऑफ नरेशन, वो सुनाने के लिए होता है. एंड ड्रामा इज द फॉर द पर्पस ऑफ टू बी स्टेज्ड और फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस. ये जो चीज आपको समझना है कि महाभारत एक पूरा का पूरा एपिक है, वो बोल के पढ़ा जा सकता है, सुनाया जा सकता है, लोग सुन सकते हैं. और उसी महाभारत के किसी एक इंसिडेंट को निकाल करके और उस पर एक ड्रामा क्रिएट किया जाए, वही है अभिज्ञान शकुंतलम. और उस इंसिडेंट में अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस कर लिए जाएं. That is the question of form we need to understand. Mahabharata is an epic. Abhigyan Shakuntalam is a play, is a drama written by Kalidas. And the story that is being used in Abhigyan Shakuntalam has been inspired from the Mahabharata. Inspired, directly borrowed के बजाय inspired word कहना इसलिए सही है because there has been certain changes in that particular drama. उस ड्रामा में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं. So Kalidas adapts the story of Shakuntala from the Mahabharata but presents it in a different form in his play. एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि महाभारत में मेजर कैरेक्टर शकुंतला नहीं है. इस प्ले में मेजर कैरेक्टर शकुंतला का पॉइंट ऑफ व्यू और दुष्यंत का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा. So the main distinction, जो major difference है, lies in the form of narration, with the Mahabharata presenting the story in an epic fashion, while the play transform it into a dramatic presentation. तो वो narration के point of view, मतलब जो narration का तरीका है वही अलग है, क्योंकि उसका पर्पस है presenting the story in an epic, वो epic स्टाइल में ग्रैंड तरीके से हर चीज को बहुत ज्यादा elaborate करके. जबकि जो प्ले है इट इज फॉर प्रेजेंटेशन, टू बी स्टेज्ड. हालांकि महाभारत को भी स्टेज्ड किया जा सकता है, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इट इज पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस टू बी स्टेज्ड, टू बी प्रेजेंटेड. द शिफ्ट फ्रॉम नैरेटिव टू ड्रामा प्रॉम्प्ट्स चेंजेस इन द स्टोरीज डायनामिक्स एंड हाउ इट कन्वेड टू द ऑडियंस. जो तीसरा मैं अंतर स्पष्ट कर रहा हूं, पहला यह है कि शकुंतला की जो कहानी महाभारत में बताई गई और शकुंतला की जो कहानी कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला में बताई गई, उसमें वेरिएशन है, अंतर है, डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन. पहला डिस्टिंक्शन नरेशन का है कि महाभारत जो है वो एपिक फैशन में है, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए है. ये पहली बात है.
दूसरी बात यह है कि ड्रामा जो है वो अपने हिसाब से स्टोरी को थोड़ा चेंज कर रहा है, और जिस तरीके से कन्वे किया जा रहा है उसके डायनेमिक्स में डिफरेंस है, ये दूसरा डिफरेंस है। द थर्ड पॉइंट इज इन ड्रामेटिक फॉर्म डायलॉग्स टेक सेंटर स्टेज, जो मेजर पार्ट है वो डायलॉग का है, रिवीलिंग कैरेक्टर इनर डायनेमिक्स एंड मोटिवेशंस, उनके अंदर क्या चल रहा था ये जानने की कोशिश ड्रामेटिक फॉर्म में। सो डायलॉग्स एंड एक्शंस, देयर जेस्चर्स, देयर मूवमेंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग स्पेसिफाइड इन अभिज्ञान शकुंतलम, and that is why we try to understand the character with more depth. So the plays allows character to act based on their motivations, leading to clashes and changing scenarios that drive the dramatic action. यहाँ पे अगला पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि अनलाइक एन एपिक, द प्ले डज नॉट डायरेक्टली इंटरप्रेट द इवेंट्स फॉर द ऑडियंस बट इनवाइट्स देम टू पार्टिसिपेट इन इंटरप्रेटिंग द एक्शन। एपिक क्या करता है कि आपके सामने उस प्ले को क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, समझाता है, इलैबोरेशन उसमें ज्यादा होता है। प्ले में इलैबोरेशन कम है, ऑडियंस के पास वो चॉइस है कि वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करे, अपने हिसाब से उसका मतलब निकाले। दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंस, जो चौथा पॉइंट है। कैरेक्टर्स इन ए प्ले हैव मोर स्पेस टू लिव आउट द मोमेंट्स अनलाइक इन एन एपिक विद डिस्टिंक्ट एपिसोड्स। प्ले में कैरेक्टर्स के पास स्पेस ज्यादा है, वो अपने हिसाब से चीजें कर सकता है, आप उसके इनर वर्ल्ड के बारे में, जबकि एपिक में जो है वो अलग अलग एपिसोड्स में बटा हुआ है। The change in form leads to different emphases in the story, with a certain aspect receiving a special focus while others are pushed into the background. पॉइंट ये है कि जैसे ही आप फॉर्म चेंज करते हो, आपने ड्रामा बनाया अगर उसका अभिज्ञान शकुंतलम विच इज अ प्ले, तो आपका फोकस जो है वो चेंज हो जाता है। महाभारत में वही बात जो मैं कह रहा था, इन महाभारत द फोकस इज नॉट ऑन शकुंतला, द फोकस इज नॉट ऑन दुष्यंत, but in Abhigyan Shakuntalam the primary focus is on Shakuntala and Dushyant. Shakuntala is a central character highlighting her feelings, thoughts and struggle in great detail. उस शकुंतला क्या फील कर रही है इस बात पे ज्यादा फोकस किया गया। But in Mahabharata the focus was not primarily on Shakuntala, however they have elaborated the struggles of Shakuntala also in Mahabharata, but here the primary focus is on Shakuntala. The shift in emphasis and form result in a significant transformation of the Shakuntala story in Kalidas' work, where the playwright's sympathies and preference become evident. तो जो लिख रहा है उस ड्रामा को वो सिंपैथाइज कर रहा है किससे, शकुंतला से, उसके सिंपैथी जुड़ी हुई है, तो वो फॉर्म है जो आपको समझना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये जो पूरी बातें हमने की, हमने कालिदास के टाइम पीरियड को समझने की कोशिश की, स्टोरी आउटलाइन भी हमने समझा, और उसके साथ साथ जो फॉर्म का जो डिफरेंस है, एपिक और ड्रामा का जो अंतर है, महाभारत की जो स्टोरी आउटलाइन है और कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है जो उसकी स्टोरी आउटलाइन है, उसके अंतर को भी हमने समझने की कोशिश की। अगली क्लास में हम थोड़ा सा नाट्य शास्त्र पे बात कर लेंगे कि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में क्या क्या बातें कही हैं, और फिर हम उसके बाद जो अभिज्ञान शकुंतलम का जो टेक्सचुअल एनालिसिस है, जो टेक्स्ट है, उस पे आएंगे। So thank you all for attending the class. Have a great day. If you have any confusions, you can directly contact us.